धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पावं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम्. Social issues like female feticide, rally for rivers, voter awareness programs. We have got sanitary pad disposal units which we have started for giving free sanitary pads. Gender inequality we have been addressing. Ragging, so we have been doing regular programs throughout the year. So we also have totally campus which is run on solar electricity. 210 kilowatt solar generation unit. We have got STP plants. Okay, we have got rainwater harvesting. We have got a medicinal garden with 60 plus medicinal varieties of trees and shrubs. Okay, we have got a drug discovery lab, animal house, and a fantastic central research lab, which is known all the country. Okay. How many students are there? We have 50 intake, so totally we have around 230 odd students, 21 MDs, 50 BDs. Okay, so that's the annual intake for us. And we have got PhD students from throughout the state. They enroll here for their PhD students. Okay, so we celebrated Silver Jubilee. Sports you are doing? Sports we are doing, cultural activities we do. Our students have won various awards at university level and interstate. So all those things we tend to do. So it's not only education, dental education I know, that we are you have to doing. make them a whole human being. Yeah. Totally everything wholesome. For Human Rights Corps and Maratha Mandal Dental College has organized with their collaboration such a good program. Whatever you call it, a ragging, anti-ragging, they have to call it. It's great pleasure that I address the students here. Principal, when I came, he briefed about the activities of the college. I feel delighted, sir, that you have made it possible and you have made this college a success till now. Hope you will continue the same. All dignitaries on the stage and students. This drug abuse, ragging and suicidal tendencies which is happening rampantly in the colleges and schools. This we have to be vigilant and we should have the knowledge of all these things, and that's why the college has organized such function. We have resource person also here. I don't have much to say, but as TCP Crime and Traffic here, these are the crimes in the prevalent society which is rampant, and we have to prevent, control and stop it in any way, and that's why we need the help of everyone. It's not like as a separate, we need the help of principal or students, nothing. The whole society has to work for this to prevent the drug abuse, and you should know that this drug abuse menace is all over the world. But as a students, you should have the knowledge of what drugs are. As a medical student, as a dental student, you will have little knowledge about the drugs. What are psychotropic drugs? What are different drugs? Drugs are just chemical substances which are for curing the diseases. But when it is excessively used, that is you called as drug abuse happens when you use it excessively. But then, what are the effects of this? It doesn't only kill that person, it doesn't only weaken the person who has this drug abuse, but the whole society. A person is an individual resource. We all make up resources for this country. You have been paid to study here. You are single resources. We can't make to die that resources. We cannot afford to lose a single person with such a bad habit. So please, as students, when you come into society, when you are in this locality or wherever you are, please try to prevent this
drug abuse. It may be you or your friends or your any contacts are doing this drug abuse. Please try to prevent it. How can you prevent it? You have to first intimate it to the concerned authority. If it's in college, we'll bring it to the notice of principal. If it is somewhere else, you have 112 for your assistance. It's not only for drug abuse. Anything happening wrong in this society, please report it to 112, which is an emergency number where we can cater to the, police can come into the help. It may be any issues. It may be quarrel on the road, it may be an accident, it may be anything. 112, you should have this emergency response number in your memory. Please do that. And then, what are the other implications? See, they say student life is golden life, but you should make it golden. You should become a perfect student. How do you become a perfect student? I think every individual, when he rises up early in the morning, first you should make up your mattress, I should say. ಮೊದಲು ಹಾಸಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೆ. That is the first help you can do to your country. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. Then you will come and do your college. Be a perfect student. Don't linger around. Don't get abused. वास्फेयर हो गए। ऐसे होते 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 ये सब बच्चों को मालूम हो गया, इनको ये एडिक्ट हो गए। और जब भी ये वर्ल्ड वार खत्म हो गया, जो भी सैनिक घर लौटे, उनके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स उनमें थे, वो गांव में आए और स्कूल कॉलेज में घुस गए और वही बर्ताव इधर शुरू किया। इसके होते होते क्या हो गया, फिर 1919 को तो वर्ल्ड वार खत्म हो गया। फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार तक बहुत ही बड़ा, बहुत रैगिंग का एक इंटेंस बड़ा, इट वाज एट अ मैक्सिमम स्पीड। 1960 में स्लोली इसका और भी घातक रूप देखने को मिला, खास करके इंडिया में। और क्या हो गया फिर 1960, उसके बाद हमको थोड़ा सा रैगिंग के बारे में समझना पड़ेगा। ये रैगिंग एक बहुत बुरी चीज़ है। यह हमारे स्टूडेंट लाइफ, खास करके मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत इसका विकराल रूप हम सब देखते आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, अब ये रैगिंग का ज़माना लगभग ख़त्म हो गया है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, हम जब कॉलेज में एंटर हो रहे थे 1980s में, तब इसका बहुत विकराल रूप बढ़ रहा था। स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में ये रैगिंग का बहुत ही दबदबा रहा। उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ मिनटों के बाद बताऊंगा आगे क्या हो रहा था और कैसे उसका कम हो गया और ख़त्म ही हो गया, लगभग आज ना के बराबर है। लेकिन रैगिंग का बहुत दबदबा रहा, बहुत उसका प्रकोप बहुत सारे स्टूडेंट्स को झेलना पड़ा, बहुत सारे कॉलेजेस को नुकसान हो गया, बहुत सारे पेरेंट्स को नुकसान हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को इनसे बहुत तकलीफ हो गया। थोड़ा सा आपको मैं रैगिंग के बारे में, हिस्ट्री में जो घटनाएं घटी उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे स्टडी के मुताबिक ये रैगिंग 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में ये ग्रीस में स्टार्ट हो गया। तब वो ओलंपिक में खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए
ये रैगिंग का ज़माना शुरू हो गया। तब इतना वो क्रूर नहीं था, कुछ माइल्ड रूप में था। ऐसे 8th शताब्दी में देखिए कितना कितना प्रॉब्लमेटिक रहेगा ये प्रॉब्लम। और वहाँ से ये स्लोली स्लोली बढ़ते 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 अनेक शतमान सौ के साल बाद, लगभग 1000 साल के बाद ये बहुत विकराल रूप लेने लगा। और इसका इफेक्ट दुनिया में यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे देशों में पड़ने लगा। 1873 में न्यूयॉर्क में एक स्टूडेंट ये रैगिंग की वजह से दर्दनाक ये त्रास सहन न करने के कारण उन्होंने आत्महत्या की। उसके बाद भी इसको कोई सही ढंग से रोकने का प्रयास नहीं किया या बहुत ही कम किया होगा। ये फिर बढ़ने लगा और स्पेशली वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत ही वाइड स्वरूप दिखाई देने लगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यानी 1914 से लेकर 1990 तक 1919 तक 5 साल में जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉर हो गया, उसमें सोल्जर्स अपना दबदबा दिखाने के लिए रैगिंग इस्तेमाल करते थे। अपने जूनियरों को सप्रेस करने के लिए ये रैगिंग बहुत जल्दी स्प्रेड होने लगा। और उसी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सोल्जर के साथ साथ बहुत सारे देश के अपने अपने सैनिक के साथ स्टूडेंट्स भी युद्ध में शामिल हो गए थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे। तब जो सोल्जर्स रैगिंग का जो प्रोसीजर स्टार्ट किया था, वो सब ये स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग लिए थे सोल्जरों के साथ, उन्होंने सब देख लिया और उसी का अनुकरण वो बाद में करने लगे। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया 1919 में, तब बहुत सारे मीन्स जो भी बचे थे सोल्जर्स और स्टूडेंट्स, वो अपने अपने देश लौट आ गए। और वो स्टूडेंट्स आने के बाद फिर वो कॉलेजेस ज्वाइन किए। तब ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स जो वो रैगिंग का प्रोसीजर उधर देखा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, वो प्रोसीजर दबंगई दिखाने के लिए, हम सबसे श्रेष्ठ है दिखाने के लिए, वो सबको प्रेशराइज्ड करने के लिए ये कॉलेजेस में अपने जूनियर्स के लिए ये रैगिंग शुरू किया। और ऐसे बढ़ते गया। वही ब्रिटिश सोल्जर्स हमारे देश में भी थे, उन्होंने भी इधर ही स्टार्ट किया और इसका इफेक्ट शुरू हो गया 1930 में, 1940 में, 1950 में। ये इंडिया में भी बढ़ता गया, फिर 60 में और बढ़ गया, 70s में और भी बढ़ गया। जब हम सब प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, तब सुनते थे 1974, 75, 77 में सब ये रैगिंग का दुनिया आ रहा था। जैसे हम हाई स्कूल में एंटर हो गए, वैसे तो और भी रैगिंग के बहुत सारे केसेस हमको सुनने को मिलते थे। और जैसे 80s में
हम कॉलेज इसमें एंटर हो गए, उसी समय इस रैगिंग का बहुत बड़ा स्वरूप दिखने लगा। उसके साथ साथ 80s में हमारे देश में, भारतवर्ष में बहुत सारे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट हो गए। तब इन लोगों को, ऐसे दबंगाई दिखाने वाले स्टूडेंट्स को और भी एक अच्छा मौका मिल गया। बहुत सारे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में एक रैगिंग आम बात हो गई। उन जमाने में एक कॉलेज और स्कूल कॉलेज यानी ये सब लोग अपोज करने में, ओपनली अपोज करने में भी हिचकिचाते थे। लेकिन कुछ लोग दबे आवाज में इसके विरोध करने लगे, फिर भी उसका कुछ भी असर नहीं होता था। फिर 80s, लेटर 80s, इन लेट 80s और भी बहुत बढ़ गया। और 90s में तो ये बहुत ही विकराल रूप ले लिया था। हम सब डिग्रीज, हमारे कॉलेज एजुकेशन ख़त्म करके हम लेक्चरिंग भी शुरू कर रहे थे। कॉलेज में एंटर होते होते इसका विकराल रूप हम सब ने देखा। मेरे जो भी जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो सब ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका प्रकोप झेला। लकीली मुझको तो कभी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इसके शिकार हो रहे थे। तब फिर 90 में ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ गया और एक प्रॉब्लम, एक वक्त आ गया। आप सबको मालूम है, किसी भी बुरे काम के भी कुछ दिन होते हैं और उसका अंत भी होता है। इसी स्वरूप में, लेकिन उतने अंत होने तक ये बहुत सारे बच्चों का शिकार किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एजुकेशनल लाइफ ही ख़त्म हो गया था। बहुत सारे घर के बच्चों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया था। ये बहुत ने झेला है। और 1996 में तो एक तमिलनाडु में एक MBBS का स्टूडेंट इस दबाव से, इस रैगिंग से वो सुसाइड ही कर लिया। ऐसे कुछ तो सबको मालूम होते थे, कुछ तो वो एग्जाम्पल रैगिंग की वजह से हुए, ऐसे ओपन में कोई बताता था। लेकिन जिनको मालूम था वो भी बहुत सारे लोग, पेरेंट्स इसके अगेंस्ट जाने को हिचकिचाते थे। लेकिन जब ये तमिलनाडु का केस हो गया, उसके बाद लगभग सारे कॉलेजेस, मैनेजमेंट ग्रुप्स और हमारे गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो भी इसके रिलेटेड, इसको सप्रेस करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स थे, पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट्स, ये सब आगे आए। और खुद ये सब सपोर्ट मिलने के बाद बहुत सारे इसके बारे में, इसके विरुद्ध में एक्ट बने। उसके बाद अब इसका खत्म होने का वक्त था। इस क्रूएल हंट का वक्त होना, ये क्रूएल हंट का अंत होना स्टार्ट हो गया। और 1999 के बाद ये बहुत ही कम हो गया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक दो एग्जाम्पल्स समाज के सामने आते रहते हैं। कुछ तो एक दो कॉलेजेस में इसके इफेक्ट दिखाई देता है। यदि हम पुलिस डिपार्टमेंट और उनके संबंधित जो डिपार्टमेंट में हमने छानबीन किया, हमने उनको पूछा, तो अब भी एक दूसरा केसेस आते रहते हैं।
लेकिन ये ना के बराबर है। और उतना हार्ड जो 80s में 90s में जितना हार्ड रैगिंग का प्रोसीजर था वो अब कुछ नहीं है, ये लगभग ख़त्म हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सब कॉलेजेस के मैनेजमेंट ग्रुप के लोग, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, इवन स्टूडेंट्स एंड और सब ग्रुप्स मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स सब मिलके इसको लगभग ख़त्म कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ और एक बात बढ़ी और एक समस्या खड़ी हो गई, वो ड्रग्स का। यहां से ड्रग्स भी शुरुआत हो गया। इसके साथ साथ आपको मैं ड्रग्स के बारे में अभी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में ड्रग्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा ड्रग्स और रैगिंग के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए, रैगिंग दो से अधिक लोगों में ये चलता है। यानी कोई रैगिंग करता है और कोई रैगिंग का त्रास झेलता है, जो उसका प्रॉब्लम होता है। यदि जो विक्टिम होता है, जिनके ऊपर ये रैगिंग का प्रॉब्लम आता है, वो यदि खड़ा हो गया और वो अपने अपने तरीके से पेरेंट्स और पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट्स इन और कॉलेज मैनेजमेंट इन सब मिलके इसको अपोज किया रैगिंग करने वालों को, तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाता है। मीन्स रैगिंग जैसे आया वैसे गया। लेकिन ड्रग्स का मामला टोटली अलग है, बहुत अलग है। ये ड्रग्स ऐसे ये कोई खड़ा हो गया विरोध में और वो कोई छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता जैसे रैगिंग हो गया। ड्रग्स है इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है। और बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स हो या और कोई हो, समाज में कोई भी व्यक्ति हो, वो ड्रग्स स्वयं लेता है। वो ऐसा क्यों करता है क्यों नहीं, वो अलग एक सब्जेक्ट है। लेकिन वो ड्रग्स लेने वाला सालों सालों तक अपने माँ बाप या भाई बहन को ही मालूम नहीं कर देता, किसी को मालूम ही नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो कैसे इसको हम स्टॉप करेंगे, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको इसके डिटेल्स दे दूंगा। यस अब ये ख़त्म करेंगे और ड्रेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके। आज मुझको बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे बेलगाम के मराठा मंडल एजुकेशनल सोसाइटी के डेंटल कॉलेज में ये रैगिंग और ड्रग्स के विरोध में हम क्या करते हैं, इसीलिए इनके हमारे कॉलेज के साथ साथ मीन्स मराठा मंडल डेंटल कॉलेज के यूनिट के साथ साथ हमारे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट और नेशनल लेवल ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स ने ये अभियान चला रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखे। इनके साथ साथ हमारे क्राइम ब्रांच के बेलगाम मैडम जी, डीवाईएसपी मैडम जी और हमारे एपीएमसी
पुलिस स्टेशन के सीपीआई बजेंद्री और पुलिस ऑफिसर, और हमारे जयश्री मालगी और निरंजन और सुनील येड़ूरकर और बहुत सारे हमारे ह्यूमन राइट्स के यूनिट के लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इन सब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक स्कूल कॉलेज में ऐसे लेक्चर्स स्टार्ट कीजिए। या अब हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और सभी को अवेयरनेस करना बहुत ही ज़रूरी है। रैगिंग तो लगभग ख़त्म हो रहा है, ऑलरेडी ख़त्म हो गया है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन जो ड्रग्स है ना, इसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। इन सब हमारे मराठा मंडल डेंटल कॉलेज, रमाकांत कामस प्रिंसिपल सर और इन सब के यूनिट्स के सब लेक्चरर्स और ये हमारे ह्यूमन राइट्स के प्रोप्स के सब पदाधिकारी और हमारे सब पुलिस डिपार्टमेंट के सब ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब ने मिलकर स्कूल जाकर इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व करना है, इसीलिए सोचना चाहिए। और मैं हर एक पेरेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सब का सपोर्ट कीजिए। और मेरे इन सब को रिक्वेस्ट भी है कि स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाकी सब मैनेजमेंट्स ग्रुप के साथ साथ पेरेंट्स को भी इस काम में ले लेना चाहिए। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए ऐसे अनवांटेड थिंग्स मीन्स रैगिंग, ड्रग्स, इन सब का विरोध करने के लिए, इनके बारे में नॉलेज देने के लिए, सबको अवेयरनेस करने के लिए हम सब मिलकर काम करना एक ज़रूरी बात है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम सब मिलके इसका विरोध करना चाहिए और इसके विरोध में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये एक बहुत विशेष हमारा काम होगा और अच्छे समाज के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हम सब मिलकर काम करना बहुत ही जरूरी है। यस, मैं तो मानता हूं कि यदि ये सब लोग इस रैगिंग के विरोध में या खास करके ड्रग्स के विरोध में, अब तो रैगिंग खत्म हो गया है लगभग, और ड्रग्स का तो खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कभी भी ये सब लोग बुलाएंगे तो मैं किसी भी हालत में मैं हाज़िर हूँगा और मैं मुझको जो भी डिटेल्स देना है मैं दे दूँगा। अच्छा, वही सब इन सब मीन्स मराठा मंडल एजुकेशनल ग्रुप और हमारे मराठा मंडल डेंटल कॉलेज टोटल यूनिट यानी प्रिंसिपल, लेक्चरर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ऑल द स्टूडेंट्स और हमारे ह्यूमन राइट्स के क्रॉप्स और हमारे सब पुलिस ऑफिसर्स, इनको मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस काम के लिए। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे मराठा मंडल यूनिट, उनके चेयरपर्सन और प्रिंसिपल, ये सब मिलके बहुत स्पेशल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एक बहुत स्पेशल एक प्रोग्राम है, ये हमको करना चाहिए। हमारा ये
एक स्पेशल प्रोग्राम चालू रहना चाहिए। इसीलिए इन सब का मैं थैंक्स देना चाहता हूँ सबको। ये बहुत स्पेशल काम है। थैंक यू, थैंक यू। So, just I will take 2 minutes. So I will share my experience in APMC police station. So I will tell practical problems what happens if you involved in drugs cases. So and also ragging cases. Recently in our KLE JNMC college, 3 students involved in ragging. जो क्या हो गया था वो स्टूडेंट को रैगिंग किया था। बाद में वो थोड़ा सेंसिटिव था स्टूडेंट। वो क्या किया, ऑनलाइन अभी साइबर क्राइम पोर्टल से हमारा कर्नाटका स्टेट पुलिस का केएसपी का पोर्टल पे है। कुछ भी अगर रैगिंग हो गई तो यू कैन इमीडिएटली पोस्ट योर प्रॉब्लम्स एंड देयर इज नो नीड टू टेल योर नेम्स एंड डिटेल्स एज वेल। सो इमीडिएट हर कॉलेज में वो एंटी रैगिंग कमिटी रहता है, प्रिंसिपल्स रहते हैं, लेक्चर्स रहता है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट CPI सर का नंबर भी रहता है, नहीं तो हमारा नंबर रहता है। कभी कभी ऐसा रैगिंग रिपोर्ट हो गई तो हम इमीडिएट चाहते हैं। एक्चुअली वो इंसिडेंट ट्विटर पे किया था, बाद में वो हमारे पुलिस स्टेशन को आ गया। बाद में हमने इंक्वायरी स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में वो स्टूडेंट मेंशन किया था कौन कौन रैगिंग किया। आपको मेडिकल एम्बुलेंस का हेल्प चाहिए तो भी वही नंबर को फोन कर सकते हैं। पुलिस, फायर, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएट 11 को आप कॉल किया तो हमारा एक 24/7 पुलिस व्हीकल रहता है, स्टाफ रहता है, इमीडिएटली आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो मैं ये 3 साल से एक अच्छा चीज़ क्या है, ये इधर मेडिकल डेंटल कॉलेज में एक भी केस रैगिंग और ड्रग्स का केस नहीं है, ये अच्छा है। सो आप लोग अच्छा काम करो, अच्छे रहो। और एक पहले क्या होता था, पुलिस बोले तो पॉलिटिशियन को आने के लिए स्टूडेंट्स लोग डरते थे। सो अभी हमारा हम भी अभी पीपल फ्रेंडली हो रहे। सो आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो फोन करो, नहीं तो स्टेशन नज़दीक है 24/7 आप आके तुम्हारा बोलना चाहिए। इतना आपका डिटेल्स भी हम कहाँ भी नहीं लेते। सो कुछ भी प्रॉब्लम तो इमीडिएट 24/7 आप आ जाए। हमारा जो हमारे से हेल्प होता है ना, वी आर रेडी टू हेल्प। थैंक यू। And traffic, Mrs. Sneha, then PSI of APMC Police Station, Mr. Manjunath Bhajantri, our guest speaker for the day, Professor Avinash Durge, our State President of Human Rights Corps, Mr. Neeraj Banaskar, Jai Shri Malgi, State President, Director of Women's Wing, all the dignitaries who are here, Mr. Satish Malode, who has been very proactive with us. We had tremendous 60 medicinal varieties of trees, okay, which is a novel thing for any dental college in the country. We have a fantastic central research laboratory where we are doing novel drug discoveries, okay, and we are applying these formulations, these novel formulations for treatment of various oral diseases. Now, Mr. Durge, Professor Durge, when he was addressing, he talked about his YouTube channel, which you all can definitely subscribe, the Avinash study model, okay? Ankush study model. Regarding the marriage bureau, there's still some time for you to subscribe to that, okay? So you might do that later after a few years of graduation, okay? But his study model you can definitely visit, you can subscribe, try to learn from that. And apart from this, he also addressed about tobacco abuse, and he was talking about his juniors and maybe his friend circles, people who abuse tobacco. Let me inform Professor Ankush that we have a very active tobacco cessation cell at our institute with Dr. Sujata Bhatti as the in charge, where we actively involve in taking
people out of these habits. So all the dabangs that you know, you can please refer them to our institute for this tobacco cessation protocol, and we will definitely enroll them in that. Thank you, sir. Okay, and we thank all the dignitaries for being with us and for the audience for a very patient hearing. Thank you very much. Have a great day.